हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पांडे ब्लॉग। मैं अमरेश पांडे आपको इंग्लिश रीडिंग करना तथा आपका वोकैब सेक्शन दोनों पे आपके सिखाता हूँ। मैं डेली हिंदू लिटरेचर लेके आता हूँ जिससे आपको करंट अफेयर्स का भी नॉलेज हो, दुनिया में क्या चल रहा है वो भी आपको पता चल जाए और जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो इंग्लिश एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो भी आपका सही हो जाए और साथ साथ वोकैब को भी विद सिनोनिम्स ऐसा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि वो जो जो एग्जाम में आते हैं वो भी रिलेटेड टॉपिक आपको मैं कवर कर लेता हूँ। तो मेरे एक वीडियो से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, करंट अफेयर भी आता है, दुनिया में क्या चल रहा है ये भी पता चल जाता है और साथ ही साथ आपका इंग्लिश भी इंप्रूवमेंट होता है, रीडिंग स्किल भी और वोकैब भी, क्योंकि जो कि इंग्लिश में बहुत ही काम आता है यदि आप इंग्लिश एग्जामिनेशन देने जाए तो चलिए आज का ये वीडियो शुरुआत करते हैं और आज का द हिंदू लिटरेचर हम लोग पढ़ते हैं। A transient high record GST inflows are heartening. The major risk lie ahead. इंडिया जीएसटी रिजाम मैंने कल ही बताया था, आप लोग कमेंट में लेकर बताइएगा रिजाम मतलब होता क्या और उसका एक वर्ड बता दीजिए ताकि आपको रिकॉल हो पाएगा और आपका वो कैब बहुत अच्छा बन जाएगा। कुड नॉट हैव होप्ड फॉर अ बेटर स्टार्ट टू इट्स फिफ्थ ईयर. Revenues from the tax hit an all-time high of 1,41,384 crore in April, surpassing the previous month record of about 1.24 lakh crore after a disastrous period for the economy following last year national lockdown. GST revenue hit 1.05 lakh crore in October and have saw a steady uptick since then, in tandem with hopes of a sustained recovery. April numbers, which are essentially driven by the transaction in March, were blustered by heightened economic activity. No doubt, the specter of rising COVID-19 cases and the fear of impending lockdown could also have driven people to make advance pure purchase in anticipation. Moreover, firms in the process of closing annual accounts may have remitted higher GST based on audit advice, while a gradual tightening, tightening of the compliance regime and proactive coordinate props against taxpayers using fake bills to evade liabilities have played no small part. In April 2020, GST collection had dipped to a mere 32,172 crore after all activity ground to a halt at 4 hours notice in late March. Economic activity may not yet be as badly affected amidst आपको भी बताया है, इसका आप भी इसका कमेंट में लिख के बताइएगा क्या इसका वर्ड मीनिंग है और एक वर्ड सेंटेंस में बताइए ताकि आपको रिकॉल हो सके। पैंडेमिक सेकेंड वेव. So far, going by the restrictions imposed in several states, supply chain disruptions are not expected to be as challenging. However, weakening demand will trigger a recalibration of production and investment plans, some of which has begun to kick in. Consider some indicator. Major two-wheeler producers saw sales plummet by around a third in April compared to March. Plant Plant shutdowns have gradually begun to reduce inventory buildups. In a report, Wall of Worry, CRISIL has warned. CRISIL एक संस्था है जो बताती है कितना पर्चे कितना नहीं. Warned of several indicators sliding since mid-April, including GST e-way. आप लोग बताइएगा जीएसटी का लागू कब हुआ था, पहला देश कौन था जीएसटी लागू करने वाला, ये दो तीन चीज़ बताइएगा तो। और इसी में मैंने आपको बताया कि कितने साल हो गए जीएसटी के, तो ये भी बताइए कमेंट में ताकि आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर भी दोनों भी एक साथ चलता रहे अच्छे से। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। Bills which fell by over 6% 2 weeks in a row. Manufacturing order growth hit an 8-month low in April as per
IHS Markit, एज पर IHS Markit, ये भी एक संस्था है IHS Markit, इसका थोड़ा डिटेल्स हमको बताइएगा तो IHS Markit के बारे में गूगल करके. एंड द पैंडमिक सर्ज एंड डेस्परेट शॉर्टेज ऑफ हेल्थ infrastructure have prompted industry leader to pitch for a stringent का बताया था ना, फिर से आपको मिल गया एक टास्क. स्ट्रिंजेंट का मीनिंग बताइएगा तो आपका रिकॉल हो जाएगा कल वाला. देख रहे हैं ना, जितना आप डेली पढ़ेंगे वो रिपीट होगा और आपका वोकैब उतना ही अच्छा हो जाएगा. स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, इट वुड बी फुल हार्डी नाउ टू एक्सपेक्ट GST एंड अदर टैक्स रेवेन्यूज टू से रोबस्ट. कल बताया था रोबस्ट, आज फिर आ गया रोबस्ट. टिल द government gets a better grip on infections and vaccination with assembly polls over, the center must urgently convene the GST council to added to what is already pending rationalization of GST rate slabs, a raising of rate and critical pandemic supply, and the prickly issue of bringing fuel under GST. The council must be gearing up early for shortfalls in GST compensation to state that may arise this year. India can ill afford a repeat of the 2020 phase of between the center and state that almost upended the very split of cooperative fertilization the GST emerged from. जो हमने एडिटोरियल पढ़ा, चलिए उसका हार्ड वर्ड विथ सिनोनिम्स जान लेते हैं. आज है मई, द हिंदू का मई 4 मई 2021 मंगलवार. सबसे पहला बात था ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट मतलब क्षण भर होता है, क्षणिक, कुछ देर के लिए होता है. इसमें मोमेंट्री, फ्लीटिंग, इवेंसेंट, फिगरेसी. जो फिगरेसी बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है. इसका मतलब क्या होता है, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. इसका इंग्लिश मीनिंग बता दिया, जो कि इंग्लिश वाले देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा क्या बोलता है ये. और ये जो इंग्लिश वर्ड है ना, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, इसको यदि आप थोड़ा सा भी रखिएगा तो समझ में आएगा वो ट्रांजिएंट है ये. तो उसको एक वर्ड क्या है खुद से बनाया, द हाई वोल्टेज गेम एंड इन ट्रांजिएंट. मतलब जो हाई वोल्टेज गेम होता है, जितने नहीं है, छह ओवर में, एक ओवर में खत्म हो जाता है 2020 गेम में. फिर दूसरा आ गया टेंडेम. टेंडेम मतलब होता है एक के पीछे एक, मिलकर. एन अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स और पर्सन वन बिहाइंड. जैसे एग्जांपल, अ बाइसिकल विद सीट्स एंड पेडल फॉर 2 राइडर्स. जैसे गोलमाल आप मूवी देखा होगा, देखते नहीं, एक ही साइकिल पर 3-4 जन बैठे रहते हैं, उस टाइप का उसको बोलते हैं टेंडेम. एक के पीछे एक कंटिन्यूसली, उसको अ टेंडेम ट्रेलर. देखते नहीं, ट्रेलर निकलता है तो एक के बाद एक ट्रेलर आता है. उसके बाद चलते हैं बॉलेस्टेड. बॉलेस्टेड मतलब होता है सहारा मिलना, बल मिलना, पीछे धक्का, मतलब किसी को देते सहारा, सपोर्ट, स्ट्रेन करना. अ गुड स्लीपिंग इज बॉलेस्टेड योर माइंड पावर. यदि आप अच्छा सोएंगे तो आपको दिमाग की जो पावर है वो अच्छा बढ़ता है, क्योंकि जानते हैं गुड स्लीप इज़ अ गुड ब्रेन हेल्थ. डॉक्टर भी बोलता है कि अच्छे सोइए आप. फिर स्पेक्ट्र. स्पेक्ट्र मतलब होता है छाया, साया, नेगेटिव सेंस में लेकर, लाइक घोस्ट, जैसे शेड हुआ, एपर्सन. ये एपर्सन जो है, इसको याद रखिए, ये पूछा था. फिर से रेत. इसका वर्ड मैंने बनाया था, स्पेक्टर ऑफ राइजिंग कोविड-19 केसेस. मतलब छाया जो हम लोग को बढ़ चुका है, बढ़ ही रहा है छाया. उसके बाद इम्पेंडिंग. इम्पेंडिंग मतलब आसन होता है, उपस्थित, सिर पर आया हुआ, एडजेसेंट सटा हुआ, उसी तरह से लगा हुआ रहता है. रेडी, इमिनेंट. ऑफ एन इवेंट रिगार्डेड एज थ्रेटनिंग. मतलब कुछ थ्रेटनिंग के ऊपर हुआ है, कि अबाउट टू हैपन फोर्थ, मतलब वो कुछ होने वाला है सामने, फोर्स, फ्यूचर में. द ऑथर हैड रिटर्न टू हिज कंट्री अहेड ऑफ द इम्पेंडिंग वार. मतलब एक लेखक जो है अपने कंट्री लौट गया, जो कि लड़ाई होने से पहले, मतलब लड़ाई अब होने वाला है, इसलिए वो अपने राजा जो है, मतलब ऑथर लेखक जो अपने लौट गए. रेमिटेंड, प्रेषित, छोड़ना, कम करना, क्षमा करना, भेजना. आप लोग को मालूम नहीं है कि एक वर्ड जो है नाउन भी बन सकता है, वर्ब भी बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है. यदि इस टाइप को आपको यदि कोई वीडियो चाहिए कि नाउन कौन सा है, कैसे पहचानेंगे, कौन सा वर्ड वर्ब है, कैसे एडजेक्टिव है, तो उसके ऊपर आप यदि आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उसके ऊपर एक अच्छा खासा लेसन बना दूंगा. तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप देखते ही समझ में आया कि ये डाउट जो है, एक वर्ड डाउट है, नाउन को भी यूज़ कर सकते हैं और वर्ब में भी यूज़ कर सकते हैं. उस तरह से ये वर्ड जो है रेमिटेड, इसको हम एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ब भी यूज़ हो सकता है. इसके लिए बहुत सारे. तो आप देखिए, एक इसका मतलब प्रेषित भी करना होता है, छोड़ना भी होता है, कम करना भी होता है, क्षमा करना भी होता है, भेजना भी होता है. कैंसल, रिवोक, ये सब होता है. तो रिवोक, रिपील, फिर से एब्रोगेट, ड्विंडल, ट्रांसमिट, समझ में करते हैं. ये सब जो है, ये जो रिवोक, रिपेल, एब्रोगेट और ड्विंडल, ये सब जो है थोड़ा अच्छा अच्छा वर्ड है, जो कि क्वेश्चंस पूछा जाता है इसके लिए एसएससी में और फिर बैंकिंग में भी. तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं. एक होता है इनकम दे रिमिटेड टू देयर फैमिलीज. मतलब जो इनकम है वो भेज, यहाँ पर हो गया भेजना,
अपना इनकम जो है अपने फैमिलीज को भेजते हैं। फिर हुआ द रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन वाज रेमिटेड टू अ स्पेशल कमेटी, यहाँ हो गया रेफर टू, मतलब इन्वेस्टिगेशन जो जांच जो है स्पेशल कमेटी को दे दिया गया, रेफर कर दिया गया। और यहाँ फोबियाज में रिमिट स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी ट्रीटमेंट, और यहाँ पर रिमिट का मतलब हो गया क्या कि फोबिया मतलब डर जो है स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी ट्रीटमेंट हटाया जा सकता है, मतलब खत्म किया जा सकता है। फिर हो गया इवेड, इवेड मतलब बचना, टाल में टलना, बच निकलना, इसका मतलब है कि एस्केप और अवॉइड स्पेशली फॉर क्लेवर, अपने चालाकी से वहाँ से ट्रिक करके। इसका सिनोनिम्स हो गया एल्यूड, ये बहुत बार अच्छा पूछा गया है। फिर से डॉज, जानवे करते हैं जब बाउंसर पड़ता है तो डॉज करना पड़ता है। फिर एस्केप, इसका सेंटेंस है फ्रेंडली हेल्प, फ्रेंड्स हेल्प हिम टू इवेड कैप्चर फॉर अ टाइम। फिर हो गया रिकैलिब्रेशन, पुनः गणना, मतलब गणना तो होता है फिर से उसको देने के लिए पुनः गणना होता है। द मेजर्स डिवाइस रिक्वायर्ड रिकैलिब्रेशन, मतलब जो गणना हुआ उसको फिर से पुनर्गणना करना पड़ेगा। सो प्लमेट, प्लमेट मतलब आकस्मिक रूप से घटने, एक का एक हो जो होता है। फॉल्स और डाउन स्ट्रेट डाउन एट हाई, मतलब एक गिर गया छट करके, उसको हो गया प्लंग, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको बार पूछा जाता है। फॉल हैंड लॉग, मतलब जल्दी से एकदम क्रैश नहीं हो सकता है, एक बार में क्रैश हो गया। फिर ड्रॉप हो गया। तो स्टॉक मार्केट हैज प्लम्ड आफ्टर गेटिंग गवर्नमेंट चेंज न्यूज, मतलब स्टॉक मार्केट ढंग से जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होगा ये सुन करके स्टॉक मार्केट जो है नीचे गिर गया। फिर होता है कन्वीन, एकत्र होना, आयोजित करना। समन ऑन, असेंबल, गैदर, मीट, कांग्रेट, ये कांग्रेट जो है ये बहुत ही अच्छा वर्ड है जो कि पूछा गया है और पूछा जाता है रह करके। ही हैड कन्वेड अ सीक्रेट मीटिंग, उसने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई है, एकत्र होने के लिए आयोजित किया गया है। फिर है रेजिक, रेजिक बदलाव, चेंज हो गया, रीइक्विप कर गया। रेजिक द जीएसटी स्लैब, जो जीएसटी स्लैब उसको थोड़ा रेजिक करना चाहिए। फिर हो गया प्रिकली, प्रिकली मतलब कांटेदार, कटीला, चिड़चिड़ा हो जाता है। स्पाइकी, थ्रोन, इरेटेबल, सिक्के में क्रॉस, प्रिकली एंड जनरली डिफिकल्ट, वो आई अपने चिड़चिड़ापन में और जनरली के डिफिकल्ट की तरफ से। तो ये था आज का जो हार्टेड वर्ड, आपको कैसा लगा जरूर से ज़रूर बताइएगा। हाय दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का एडिटोरियल? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करें, पर मुझे जरूर बताएं कि डिसलाइक क्यों किया आपने, और कमेंट में जरूर बताइए यदि आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो। और हाँ, यदि आप मेरे साथ ऐसे ही रहेंगे तो आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप मेरे साथ बस 15 दिन रख कर देखिए और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको अपने में फर्क समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये वीडियो ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।